वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ ITSM स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने सर्विस ट्रांजिशन का टॉपिक स्टार्ट किया था जो कि यूनिट 3 का पार्ट ए है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 3 का जो पार्ट बी है दैट इज़ सर्विस ट्रांजिशन प्रोसेस, तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज़ द पार्ट बी of unit 3, that is service transition processes. So in that first we'll study the service transition processes. So service transition process consists of different process. So first process in service transition is transition planning and support, that is in short called as the TPS. Second process will be the service validation and testing, in short it is called as the SVT. Third process in the service transition is the change evaluation. Fourth process is the release and deployment management. Fifth process is the change in management. Sixth one is the service assets and configuration management, and seventh one is the knowledge management. So these seven are the main processes in the service transition. Then we'll study each of these process in detail. So first we start with the transition planning and support, that is known as the in short TPS. So first we'll study the goal of this transition planning and support. So service transition planning and support process ensure the orderly transition of new or modified service into production together with the necessary adaptation टू सर्विस मैनेजमेंट प्रोसेस। तो सर्विस ट्रांजिशन प्लानिंग एंड सपोर्ट प्रोसेसेस में जो भी ट्रांजिशन होगा न्यू सर्विस में या जो मॉडिफिकेशन होगा ओल्ड सर्विस में, ठीक है, जो कि प्रोडक्शन में है, ठीक है, सो दैट टुगेदर विल अडेप्ट द नेसेसरी चेंजेस विद द सर्विस मैनेजमेंट प्रोसेसेस. So this must be incorporated with the service design and operational requirement within the transition planning. तो ये जो इनकॉर्पोरेट होगा सर्विस डिज़ाइन एंड जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स है बिजनेसेस के, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो ट्रांजिशन को प्लानिंग किया जाएगा. तो जो ट्रांजिशन प्लानिंग है एंड सपोर्ट है, सो इट हैज़ अ टू मेन ऑब्जेक्टिव. तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन है, एंड सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो स्टैंडर्डाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन द सर्विस. So we'll study the first objective, that is planning and coordination objective. So coordinate resource and activities across the project, suppliers and service team requires to successfully introduce a new service or modify an existing service or retire a service. ठीक है, तो जो coordination है resources जो अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन में एंड जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, एंड सप्लायर्स के लिए या जो टीम्स वर्क कर रही है सर्विस में, दैट इज़ सर्विस टीम. So that requires a successfully introduction into the new service. तो जो न्यू सर्विस या जो प्रीवियस सर्विस है उसमें हम अपडेशन करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है, तो उसमें जो भी रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स होंगी, सो दैट मस्ट बी अ सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस इन द दिस सर्विस ट्रांजिशन प्रोसेस. सो मैनेज द रिस्क टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ फेल्यूर इन द सर्विस. ठीक है, तो जो रिस्क फैक्टर है उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है. So the chances of failure will be also minimum. Also monitoring and improvement in the service transition performance. तो जो modifications होंगे या न्यू सर्विस फॉर्म होगा, ठीक है, तो उसका जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, so that can be continuously monitor for improvement of the performance of that service. Second objective is the or goal is the standardization and improvement objective. So ensure adaptation of standard and reusable process and supporting system. So continue improve the performance of the service transition stage. ठीक है, तो सर्विस ट्रांजिशन स्टेज में जो कंटिन्यूस परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा एंड हाउ द परफॉर्मेंस कैन बी इंक्रीज. सो दैट मस्ट बी अ मेन ऑब्जेक्टिव in service transition state. So benefits of that is the well managed transition planning and support process will deliver the following benefits to the IT service provider. ठीक है, तो एक वेल मैनेज जो ट्रांजिशन प्लानिंग होगा एंड सपोर्टिंग प्रोसेस होगा, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो बेनिफिट्स है
आईटी सर्विस प्रोवाइडर को, उसका यहाँ पे लिस्ट दिया है। फर्स्ट जो बेनिफिट है वो कंसिस्टेंसी है इन द सर्विस ट्रांजिशन एक्टिविटीज़ थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेप्टेड सेट ऑफ पॉलिसीज़ एंड स्टैंडर्ड एंड मॉडल्स। तो जो पॉलिसीज़ एंड स्टैंडर्ड एंड मॉडल्स जो फॉर्म होंगे, ठीक है, सो दैट मस्ट बी अ कंसिस्टेंस regarding this service transition activities for the IT service provider. So that is the first benefit. Second, increase the ability to manage the multiple transition at the same time, ठीक है। तो जो मल्टीपल ट्रांजिशन है सर्विस के एट द सेम टाइम, ठीक है, दैट मस्ट बी अ इंक्रीज बाय यूजिंग दिस स्टैंडर्डाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एंड डिलिबरेट prioritization of resources required by the various project and change activities resulting in a cost efficiencies as well as जो continuous alignment होगा that is changing in the business objective, and also future budget and resources requirement for service transition are anticipated. So these are the some benefits of this improvement in the performance of service transition stage. सेकंड जो प्रोसेस है सर्विस ट्रांजिशन का वो है सर्विस वैलिडेशन एंड टेस्टिंग। सो इन शॉर्ट इट इज़ कॉल्ड एज अ SVT। सो फर्स्ट विल स्टडी द व्हाट इज़ द गोल ऑफ दिस सर्विस वैलिडेशन एंड टेस्टिंग, ठीक है। तो सर्विस वैलिडेशन एंड टेस्टिंग का मेन जो ऑब्जेक्टिव या गोल्स क्या है वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो जो गोल है सर्विस वैलिडेशन एंड टेस्टिंग का इज़ टू प्रोवाइड द ऑब्जेक्टिव एविडेंस टू द न्यू और चेंज द सर्विस सपोर्ट कस्टमर बिजनेस एंड स्टेक होल्डर्स रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो कस्टमर एंड बिजनेस या स्टेक होल्डर्स के जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू दैट द न्यू सर्विस और देयर इज अ चेंज इन द प्रीवियस सर्विस, ठीक है, और मॉडिफिकेशन इन द सर्विस दैट हैज़ टू बी मेड। सो दैट इज़ द मेन गोल ऑफ सर्विस वैलिडेशन एंड टेस्टिंग। द ऑब्जेक्टिव्स आर टू कंफर्म दैट कस्टमर एंड स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट्स आर डिफाइंड। तो जो कस्टमर्स है जो सर्विस यूज़ कर रहे हैं या जो स्टेक होल्डर्स है ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के, ठीक है, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है रिगार्डिंग द बिजनेस, ठीक है, सो दैट मस्ट बी अ कंफर्म और इट कैन बी अ डिफाइन इन वेल मैनर। सो अश्योर दैट द रिलीज विल डिलीवर द सर्विस विच आर फिट फॉर द पर्पस एंड परफॉर्मेंस और फिट फॉर द यूज़ एज पर द स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो जैसे ही न्यू सर्विस लॉन्च हुआ है, ठीक है, या मॉडिफाई हुआ है सर्विस में, ठीक है, तो जो चेंजेस किए वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर एंड स्टेक होल्डर के जो रिक्वायरमेंट्स है उसको ध्यान में रख के किए गए हैं, ठीक है। तो जो सिस्टम का या सर्विस का जो परफॉर्मेंस है एंड जो स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, तो जो कंडीशंस डिफाइन है उसके अकॉर्डिंग उसका परफॉर्मेंस एंड स्पेसिफिकेशन यहाँ पे होना चाहिए। सो दैट इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। Next is the scoop. So support release and deployment process, ensure the appropriate level of testing and perform during the release, build and deployment activities. तो जब भी सर्विस रिलीज़ या बिल्ड होगा या डिप्लॉय होगा कस्टमर को या स्टेक होल्डर्स को, सो एट दैट टाइम दैट कैन बी अ टेस्टेड एंड दैट विल बी अ सपोर्ट टू रिलीज एंड डिप्लॉयमेंट प्रोसेस। सो दैट इज़ वन ऑफ द लाइफ साइकिल that will decide the quality assured by any aspect of service. Next process of service transition is the evaluation. So that is a change in evaluation. So here change evaluation process aim to assess the major changes like introduction of new service or substantial change to existing service before those changes are allowed to proceed to the next phase in the life cycle, ठीक है। तो चेंज इवोल्यूशन प्रोसेस का जो एम है वो जो मेजर चेंजेस फॉर्म होंगे न्यू सर्विस में, ठीक है, या जो प्रीवियस सर्विस है उसको मॉडिफाई किया जाएगा या एग्जिस्टिंग सर्विस को मॉडिफाई किया जाएगा, ठीक है। तो जो चेंजेस है दैट कैन बी अलाउ टू प्रोसीड द नेक्स्ट फेज, ठीक है, इन द लाइफ साइकिल। द चेंज इवोल्यूशन इज कॉल्ड upon by change management process at various point in the change life cycle to perform the change assessment. For example, before authorizing the change, ठीक है, तो जो भी सर्विस में चेंज होगा तो उसके लिए ऑथोराइजेशन होना चाहिए सीनियर अथॉरिटीज़ का, ठीक है।
Second, before authorizing the release build. Third, during the post implementation review. So these are the three example of change evaluation. Then focus, ensure that expectation are realistic. ठीक है, तो जो expectations है जो सर्विस को यूज़ करेंगे कस्टमर या स्टेक होल्डर, ठीक है, तो वो एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होना चाहिए. इंडिपेंडेंटली इवेलुएट्स एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड वन. ठीक है, तो जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है सर्विस का एंड जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, सो दैट मस्ट बी अ कंपेयर. इवेलुएट द इंटेंडेड एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट्स ऑफ सर्विस चेंजेस. Also provide the effective and accurate information about the change management, and the output of that is the result of formal change evaluation are documented in the change evaluation report. तो जो रिपोर्ट फॉर्म होगा उसमें डॉक्यूमेंट फॉर्म में यहाँ पे जो फॉर्मल चेंजेस किए हुए सर्विस में, ठीक है, सो दैट मस्ट बी अ नोटेड. सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इवोल्यूशन regarding the service transition process. Next service transition process is the deployment management. So in that, release and deployment management aims to build, test, deliver the capability to provide the services specified by the service design, and that will accomplish the stakeholders requirement and deliver the intended solution. तो जो सर्विस रिलीज होगा कस्टमर को या स्टेक होल्डर्स को, दैट इज़ अ डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट. ठीक है, तो इसका जो मेन एम है वो है टेस्टिंग एंड डिलीवर द कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड द सर्विस स्पेसिफाइड बाय द सर्विस डिज़ाइन. ठीक है, तो जिस तरह से सर्विस डिज़ाइन किया गया, ठीक है, तो उसको डिलीवरी से या डिप्लॉयमेंट से पहले टेस्ट करना ज़रूरी है. मीन्स जो कैपेबिलिटीज़ है उसमें जो रिसोर्सेज यूज़ किए, ठीक है, एंड जो उसका एम है सर्विस मॉडिफिकेशन का, वो वहाँ पे अकम्प्लिश होना चाहिए. ठीक है, स्टेक होल्डर के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली. ठीक है, एंड उसका जो सोल्यूशन है, सो दैट सोल्यूशन विल बी अ बेटर वन. सो दैट इज़ द मेन एम ऑफ दिस रिलीज एंड डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट, which is one of the service transition. Then we study the goal and objective of this deployment process. So to deploy the release into production and enable effective use of service in order to deliver the value to customer. तो जो वैल्यूएबल कस्टमर्स है कंपनी के, ठीक है, जो यूज़ करेंगे सर्विस को, ठीक है, तो उस सर्विस में जो भी वहाँ पे आउटपुट या जो भी परफॉर्मेंस होगा सर्विस का, सो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू. सो दैट इज़ द मेन गोल ऑफ दिस deployment. Objectives are to ensure the clear and comprehensive plan are in place that will build, install, test and deploy the release packages on schedule. ठीक है, तो जो सर्विस के जो पैकेजेस होंगे, ठीक है, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट्स ऑफ दैट पैकेजेस आर ऑन द टाइम और ऑन द शेड्यूल टाइम. सो नॉलेज ट्रांसफर्स टू यूज़र, ऑपरेशन एंड सपोर्ट स्टाफ. ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑपरेशंस है एंड सपोर्टिंग स्टाफ यहाँ पे होना चाहिए टू हैंडल द सर्विस मेंटेनेंस एंड इंश्योर दैट द यूटिलिटीज़ एंड वारंटीज़ एंड सर्विस लेवल्स आर डिलीवर एज अ एग्रीड. ठीक है, तो जो वारंटीज़ एंड सर्विस लेवल्स होंगे, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, वारंटीज़ है, दैट कैन बी डिलीवर्ड और टू द कस्टमर एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज़ मेड बिटवीन द this IT service provider and on the customer. So that must be at the agreed level. Then scope, the processes, system and functions are intended in the scope of release and deployment management. Next service transition process will be the change management. So first we will study the goals and objective of this change management. So the goals are respond to the customer changing business requirement. ठीक है, तो जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, सो दैट मस्ट बी अ चेंज एट द वेरियस स्टेजेस. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट ऑफ व्यू द IT सर्विस प्रोवाइडर विल रिस्पॉन्ड टू द कस्टमर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स और रिक्वायरमेंट्स in the change of business into the their
service. So maximize the RFC value and reduce the incident, disruption and rework. So response to the business and IT request for change that will align the service with the बिजनेस नीड्स. ठीक है, तो जो कस्टमर के बिजनेस नीड्स है अकॉर्डिंग टू दैट सर्विस को मॉडिफाई करके जो सर्विस है वो प्रोवाइड करना है कस्टमर्स को. सो दैट इज़ द मेन एम ऑफ द सर्विस IT सर्विस प्रोवाइडर. So the objective are to ensure that changes are recorded, then evaluated, authorized, prioritized, planned, tested, implemented, documented and reviewed in the control manner. ठीक है, तो जो सर्विसेज में चेंजेस फॉर्म होंगे अकॉर्डिंग टू द बिजनेस नीड्स ऑफ द कस्टमर, तो कस्टमर के जो बिजनेस नीड्स है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट जो भी चेंजेस फॉर्म होंगे सर्विस में उसको एवेल्यूएट करना, टेस्टिंग करना, ऑथोराइज करना, प्लान करना, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना, डॉक्यूमेंट फॉर्म में पुटअप करना, रिव्यू करना, ये सब जो अलग अलग थिंग्स है. ठीक है, सो दैट विल बी मेड इन द कंट्रोल manner. So that is the objective of this change management process. So 7 R's are the questions that must be answered to all changes. So here the 7 questions will be arise when we make the changes in the service. Without this information the risk and impact assessment cannot be completed. ठीक है, तो ये जो यहाँ पे 7 R जो क्वेश्चंस है इनके यहाँ पे इंफॉर्मेशन होना चाहिए. ठीक है, सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु रेज द चेंज. ठीक है, तो यहाँ पे जो चेंज किया है सर्विस में, ठीक है, तो किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज रेज किया है. सो दैट इज़ द क्वेश्चन. व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ चेंज. ठीक है, रीज़न क्या है सर्विस में चेंज करने का. ठीक है, तो हो सकता है कि कस्टमर के बिजनेस पे जो रिक्वायरमेंट्स है वो चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली सर्विस को यहाँ पे मॉडिफिकेशन नेसेसरी है. ठीक है, व्हाट इज़ द रिटर्न रिक्वायर्ड फ्रॉम द चेंज. ठीक है, मीन्स जो आउटपुट मिलेगा सर्विस चेंज करने के बाद. ठीक है, सो व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड आउटपुट फॉर दैट. सो व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व इन द चेंज. ठीक है, तो रिस्क कौन सी रिस्क इन्वॉल्व है अगर सर्विस में चेंज किया जाता है. तो व्हाट आर द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर डिलीवर द चेंज. ठीक है, तो जो चेंजेस मेड किए जाएंगे सर्विस में उसके लिए कुछ अलग रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट है क्या. ठीक है, तो ये भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन होना चाहिए. हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू बिल्ड, टेस्ट एंड इम्प्लीमेंट द चेंज. ठीक है, तो यहाँ पे सर्विस को कौन बिल्ड करेगा, टेस्ट करेगा एंड इम्प्लीमेंट करेगा जो भी चेंजेस फॉर्म हुए सर्विसेज में. एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन दिस चेंज एंड अदर चेंजेस. So these 7 questions answer information will be available so that the risk and impact assessment can be easy. Then we'll study the types of changes. Type of changes are normal changes. That changes must be go through the assessment, authorization and may require the change advisory board, that is CAB agreement before implementation. तो जो भी सर्विस में चेंज होंगे उसके लिए यहाँ पे असेसमेंट एंड ऑथराइजेशन नेसेसरी है, जिसके लिए जो चेंज एडवाइजरी बोर्ड है कैप का एग्रीमेंट बिफोर इम्प्लीमेंटेशन इन द चेंजेस इन द सर्विस आर नेसेसरी. तो उनका परमिशन यहाँ पे होना चाहिए कैप का बिफोर मेकिंग द चेंजेस इन द सर्विस. द नेक्स्ट पॉइंट इज द की डेफिनेशन. So service change is the addition, modification or removal of anything that could have an effect on IT services. The scope includes all IT services, configuration, the process and documentation etc. ठीक है, तो configuration item that is CI is the any component that needs to be managed in order to deliver the IT service. So next point is the key metrics for change management are unauthorized changes, unplanned outage, a low change success rate, high number of emergency change, delay project implementation. ठीक है, तो ये जो की पॉइंट्स है रिगार्डिंग मैनेजमेंट से. ठीक है, देन की चैलेंजेस विद द चेंज इन मैनेजमेंट आर, जो मेन चैलेंजेस है जो फेस करने पड़ेंगे व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन मैनेजमेंट. फर्स्ट, लैक ऑफ ओनरशिप ऑफ द इम्पैक्टेड सिस्टम.
inaccurate configuration data may result in poor impact assessment, bypass the agreed procedures। ठीक है, तो जो प्रोसीजर्स एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, सर्विस इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसको यहाँ पे बाईपास कर दिया जाए। देन रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अम्ब्रेला ऑफ चेंज इन मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये जो मेन चैलेंजेस है रिगार्डिंग द चेंज इन मैनेजमेंट। Then we'll study the role of manager in this change in management. The role of change manager is as follows. The change manager controls the life cycle of all changes, that is priority, rejection, incomplete and impractical। ठीक है, तो यहाँ पे जो चेंज मैनेजर है दैट विल कंट्रोल द लाइफ साइकिल ऑफ ऑल चेंजेस मेड इन द सर्विस लाइक प्रायोरिटी, रिजेक्शन, इनकम्प्लीट एंड इम्प्रैक्टिकल सर्विस, इंश्योर मिनिमम डिस्क्रिप्शन टू द आईटी सर्विस ड्यू टू चेंज। ठीक है, तो जो भी न्यू सर्विस में चेंज होगा या प्रीवियस सर्विस में चेंज होगा तो उसकी वजह से अदर आईटी सर्विसेज पे उसका मिनिमम डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। देन चेयर चेंज एडवाइजरी बोर्ड, दैट इज कैप। देन इश्यूज इन चेंज इन शेड्यूल्स, coordinate building, testing and implementation of service, update the change log, review the implemented changes। तो जो भी सर्विसेज में चेंज होंगे उसका रिव्यू यहाँ पे लेना ज़रूरी है, दैट इज़ ऑल्सो रोल ऑफ मैनेजर। रिव्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग RFCs, पब्लिश द मैनेजमेंट रिपोर्ट्स। तो जो मैनेजमेंट के रिपोर्ट्स होंगे दैट कैन बी अ पब्लिश, तो दैट इज़ ऑल्सो रोल ऑफ मैनेजर। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सर्विस असेट्स का डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।